آپ کو پتا ہے کہ سی پی آئی پارٹی نے مفتی عطاء الرحمان صاحب کو اپنا امیدوار بنایا ہے. یہ پارٹی کے امیدوار تو ہیں ہی لیکن آپ کے امیدوار بھی ہیں. اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ بلے کے نشان پر ووٹ دے کر مفتی صاحب کو کامیاب بنائیں. ایک مفتی، ایک قاضی، ایک عالم دین، ایک مولوی جب سڑک پر آ گیا ہے تو آپ جان لیجیے ملک کے حالات کیسے ہوں گے. کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنی گنڈا گردی ہو رہی ہے، کتنی بے ایمانی ہو رہی ہے، کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نفرت کے اس ماحول میں ہم ہر جگہ ایک محبت کی دکان کھولیں گے. ہم ان کو کہتے ہیں جب تم دکان کھولو گے تو غریب آدمی کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، وہ محبت خریدے نہ کرتے. ہم دکان نہیں کھولتے، ہم گھر گھر میں محبت بانٹنے آئے ہیں، محبت کے پھول نچھاور کرنے آئے ہیں. میرے پیاروں، جب اس دیش کی ضرورت پڑی، راج گھرانوں نے اور نوابوں نے اور بادشاہوں نے انگریزوں کے ساتھ جنگ آزادی لڑ کر ہار گئے، تب یہی داڑھی ٹوپی والے علماء آئے اور انہوں نے لڑائی لڑی، دیش کی آزادی کی لڑائی لڑی اور ایسی لڑائی لڑی کہ انگریزوں کو دانت کھٹے کر دیے، انگریزوں کو بوریاں بستر لے کر ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیے اور وہ بھاگ گئے اور ہمارا پیارا ملک اور ہندوستان آزاد ہو گیا. تو میرے پیاروں، اس آزادی میں ان علماء کرام کا خون شامل ہے. یہ علماء نہ ہوتے تو آج تک ہم غلام ہوتے. جنگے کی چوک پر کمانڈر تو یہ بات کہتے ہیں، اگر یہ علماء، یہ داڑھی ٹوپی والے اپنی جانوں کا نذرانہ، اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر انگریزوں کے سامنے ٹک نہ جاتے اور انگریزوں کی گولیاں اپنے سینے پر نہ کھاتے تو یہ ہندوستان آزاد نہ ہوتا. آج بھی ملک کو بیچا جا رہا ہے. انگریز چلے گئے، گورے انگریز چلے گئے، لیکن کالے چہروں کو چھوڑ کر گئے ہیں جو ملک ہندوستان کو بیچ کر کھا رہے ہیں، کھوکھلا کر رہے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے آج پھر علماء میدان میں آئے اور آ کر انصاف کو قائم کریں، ظلم کو ختم کریں. اسی ظلم کے خاتمے کے لیے، انصاف کو قائم کرنے کے لیے، ملک سے آزادی اور خوف سے آزادی کو آزادی کے لیے ہمارے مفتی عطاء الرحمان صاحب نریلا ویدھان سبھا کھیتر سے کھڑے ہوئے ہیں. ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ہاتھ کو مضبوط کریں اور بلے کے نشان پر ووٹ دے کر ان کو وجئی بنائے، ان کو جتائے. ان کی جیت ہماری جیت ہوگی اور اگر یہ جیت کر آئے تو ہمارے خادم بن کر، سیوک بن کر ہمارا کام کریں گے. یہ گراؤنڈ کا آدمی ہے، زمین کی لیوی کا آدمی ہے. لوگ آتے ہیں ایک دو دن تک ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے ووٹ مانگتے ہیں، پھر 5 سال تک آپ کو ہاتھ جوڑنا پڑتا ہے. یہ آدمی ایسا نہیں ہے کہ آج آپ کے سامنے آیا ہے کہ کل آپ کی آواز نہیں سنے گا. یہ زمینی آدمی ہے، غریبوں کا، میڈیم کلاس کا، ایس ٹی اور او سی کا اور دلتوں کا، پچھڑوں کا، مسلمانوں کا، سب کی آواز سنے گا اور سب کی آواز کو ویدھان سبھا میں اٹھائے گا اور سب کو انصاف دلانے اور روزگار دلانے اور ملک سے آزادی دلانے اور خوف سے آزادی دلانے کا کام کرے گا. میرے بھائیوں، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ مفتی عطاء الرحمان بڑے کے نشان پر ووٹ دے کر زیادہ سے زیادہ ان کو کامیاب ووٹ دے کر ان کو کامیاب کریں. ان کی جیت ہماری جیت ہوگی. دیکھو آج بے روزگاری چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، اس کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. آج ہندو سے مسلمانوں کو لڑانے اور مسلمانوں کو ہندوؤں سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم اعلان کرتے ہیں اپنی پارٹی کی طرف سے، اپنی کینڈیڈیٹ کی طرف سے کہ ہم لوگ ہیں جو بھارت میں مل جل کے بھائی چارے کے ساتھ رہنے پر وشواس رکھتے ہیں. اگر ہم ایک ہیں تو ہمارا ملک ایک رہے گا، اگر ہم ٹوٹ گئے
तो भारत टूट जाएगा। मेरे भाइयों, जिस गंगा में एक हिंदू भाई स्नान करके भगवान की पूजा करने जाता है, उसी गंगा में एक मुसलमान वजू करके अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने और इबादत करने जाता है। यह है गंगा जमूनी तहजीब। हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, हमें कोई भी तोड़ नहीं सकता। आज मुल्क को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मुल्क को बेचने के खोखला करने की कोशिश की जा रही है। नरेला विधानसभा के वासियों, आपको जागना है, नींद से बेदार होना है और ऐसे प्रत्याशी को, ऐसे कैंडिडेट को, ऐसे आदमी को, ऐसे खादिम को, ऐसे सेवक को चुनकर लाना है जो भूख से आजादी दिला सके, खौफ से आजादी दिला सके, अमन, चैन और इंसाफ को कायम कर सके, बदलनी के इंसाफी को मिटा सके, जो आवाज उठा सके, सबके लिए बराबर आवाज उठाए, सबको एक हाथ से देखे, भेदभाव न करे। इसके लिए मुफ्ती अताउर रहमान साहब आपकी खिदमत में आए हैं। चंद बातें कहेंगे, बड़े गौर से सुनिए। मैं फिर आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आप वोटर भी हैं, आप प्रचारक भी हैं, आप खुद भी वोट डालिए और अपने भाई बहनों और रिश्तेदारों से कह के वोट दिलाइए। बल्ले के निशान को जिताना है। अगर बल्ले का निशान जीतेगा तो हम भाईचारा शांति कायम होगा, और बल्ले का निशान जीतेगा तो फिर इस मुल्क के अंदर बदअमनी दूर होगी और बेसुकूनी दूर होगी। अगर बल्ले का निशान जीतेगा तो ये मुल्क जीतेगा, आप जीतेंगे, आपकी जीत होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जुमे के दिन सबसे पहली फुर्सत में आंख बंद करके एक होकर बल्ले के निशान पर LDCI के प्रत्याशी को और कैंडिडेट को जिताना है नरेला विधानसभा से। इंशाअल्लाह हमारे लिए फायदेमंद होगा। अब मुफ्ती साहब और काजी साहब चंद बातें आपसे कहेंगे, बड़े गौर से समाप्त कीजिए। भाइयों, भाभियों, माओ और बहनों, मैं आपके सामने नरेला विधानसभा क्षेत्र से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से टिकट लेकर उम्मीदवार बनकर आपके सामने सौदे पर जो मैं आया हूं वो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। आपकी लड़ाई लड़ना मेरा काम है, मेरा विजन है, मेरा ख्वाब है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं इसको अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि आपकी लड़ाई लड़ो है, क्योंकि जिस तरह से मुल्क में खौफ और हरास का माहौल बना दिया गया है और लोगों को डर लोगों के दिलों के अंदर बिठा दिया गया है, मैं आपके अंदर से वो डर खत्म करना चाहता हूँ। मैं आपको निडर बनाने के लिए आया हूँ। मैं संविधान के दायरे के अंदर रहकर आपको आजादी के साथ में निडर रहकर आपको मैं निडर करवाने के लिए आया हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस मुल्क भारत में जो आज से 75 साल पहले आजाद हुआ था, उसी तरीके से आप आजादी के साथ में इस मुल्क में संविधान के दायरे में रहकर अपनी जिंदगी गुजारें। लेकिन हो ये रहा है कि आपको तानाशाहियत में डरा कर रखा है। आपके अंदर जो बहादुरी थी, जो शजाअत थी, वो शजाअत, वो बहादुरी खत्म करने की कोशिश की गई है। आपको कुचलने की कोशिश की गई है। निडर, आपको निडर रहना है और कौम की आवाज, हर समाज की आवाज बनना है। हर समाज के लिए आपको आवाज बुलंद करना है। ये हर धर्म की तालीम है, हर धर्म की एजुकेशन है। हम हर धर्म की बात करने वाले लोग हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन और सिखों का धर्म हो, चाहे वो किसी का भी धर्म हो। हर धर्म एक ही बात कहता है कि आपस में मोहब्बत के साथ रहो, अमन और शांति के साथ रहो। लेकिन कुछ ऐसे मुस्लिम फितना परवर लोग हैं जो इस मुल्क को
खोखला कर देना चाहते हैं, जो इस मुल्क को बेच खाना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क पर हमारी हुक्मरानी रहे और इस मुल्क के आजाद लोग आजाद न रहें बल्कि गुलाम बन जाएं। और यकीन जानिए कि आज की जो मानसिकता हम देख रहे हैं, ये आजाद लोगों की मानसिकता नहीं बल्कि गुलामों की मानसिकता है। तो गुलाम लोग जिस तरीके से जो चीज कह दी गई, जो उनके सर पर थोप दिया गया, उसको वो उसी तरीके से स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नरेला विधानसभा के बाशिंदों, नरेला विधानसभा के लोगों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में जिस तरीके से अमन और शांति का माहौल होना चाहिए था, इस क्षेत्र में वो अमन और शांति का माहौल नहीं है। इस क्षेत्र में गुंडागर्दी का राज है। आपके इस देश और प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। इस गुंडा राज को खत्म करने के लिए एक मुफ्ती, एक काजी सड़कों पर आने पर मजबूर हो गया, आपकी लड़ाई लड़ने पर मजबूर हो गया। SC ST पर पेशाब किया गया, SC ST पर पेशाब जो किया गया, उस पेशाब को और उस SC ST पर जो पेशाब किया गया, उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए, उसके लिए आवाज बुलंद करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने अभियान चलाया था, आवाज बुलंद की थी। मैं भी आपके सामने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से प्रत्याशी बनकर इस नरेला विधानसभा क्षेत्र से मैं आया हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि खौफ से आजादी हो और खौफ से आजादी के साथ भूख से आजादी हो। बेरोजगारी जो इस क्षेत्र में बढ़ रही है, मैं ये चाहता हूँ कि आपके इस नरेला विधानसभा के करीब में IT पार्क मौजूद है। वो IT पार्क में 500 कंपनियां क्यों हैं? और IT पार्क में 5000 कंपनियां क्यों नहीं है? मैं चाहता हूँ कि IT पार्क में 5000 कंपनियां आए और ये जो लेबर है और ये जो 5वीं और 8वीं पढ़े हुए लोग हैं और ये जो 10वीं और 12वीं पढ़े हुए लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, ग्रेजुएट लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनको रोजगार मिल सके, बेरोजगारी खत्म हो और अमन और शांति ज्यादा से ज्यादा आम हो। लेकिन हो ये रहा है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा फैली हुई है कि अमन और शांति का भी माहौल बंद होकर रह गया, खौफ और हरास का माहौल गर्म हो चला है। मैं आपसे ये उम्मीद दिलाना चाहता हूँ और आपको ये यकीन दिलाने के लिए इस क्षेत्र में आया हूँ कि एक मुफ्ती और एक काजी को सड़कों पर आने पर मजबूर जो होना पड़ा है, उसकी वजह पर मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आज से तकरीबन 200 साल पहले भी इस क्षेत्र के उलमा, इस क्षेत्र में, इस मुल्क में उलमा ही खड़े हुए थे और उलमा के पीछे कौम और जनता और आवाम थी और उस आवाम ने, इस जनता ने उलमा की बात को माना था और कुर्बानियां दी थी और कुर्बानियां देने के बाद इस देश को आजाद कराया था। अब फिर वो वक्त आ गया है कि देश में उलमा किराम आए और हर कौम के धर्म गुरु लोग आए और इस देश को संभालें। इस नरेला विधानसभा क्षेत्र से मुझे SDPI पार्टी ने, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने मुझे उम्मीदवार बनाया है और इस उम्मीद के साथ उम्मीदवार बनाया है कि मैं पूरे इंसाफ के साथ आपके इस नरेला विधानसभा क्षेत्र से लड़ाई लड़ूं और मैं कोशिश ये करूं कि इस क्षेत्र में जो बेरोजगार युवा घूम रहा है, उस बेरोजगार युवा की बेरोजगारी को खत्म करने का जरिया बनूं, आपके लिए आवाज बुलंद करूं, विधानसभा में बैठकर आपके मसाइल को लेकर मैं अड़ के खड़ा हो जाऊं और ये बिल्कुल शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मैं विधानसभा में खड़ा होकर मैं आपके लिए अड़ जाऊं और खड़ा हो जाऊं कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मेरे क्षेत्र के लोग हैं, इस क्षेत्र के लोगों के साथ मैं नाइंसाफी कभी नहीं बर्दाश्त करूंगा। लेकिन ये कभी हो सकता है
जब आप मुझे नरेला विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार जो बना हूं मैं, उसको मुझे जिता कर लेके आएंगे और विधानसभा में मुझे मौका देंगे, सेवा का मौका देंगे। मैं इंशाअल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ, अमानतदारी के साथ, इंसाफ के साथ, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, चाहे SC ST OBC के लोग हों, चाहे क्रिश्चियन लोग हों, चाहे सिख लोग हों, चाहे मुस्लिम लोग हों, मैं सबकी आवाज इंसाफ के साथ बुलंद करने के लिए आपके इस नरेला विधानसभा क्षेत्र में आया हूँ और आपसे ये उम्मीद लेकर आया हूँ कि परिवर्तन लेके आना है, बदलाव लेके आना है, चेंजिंग लेके आना है। तो आप मुझे बल्ले का बटन दबाकर खिदमत का मौका दे, विधानसभा में मुझे बिठाएं। आप याद कीजिए उस वक्त को जब आज से 5 साल पहले NRC लागू करने की कोशिश की गई थी। आपके इस भोपाल के इकबाल मैदान में मेरी एक मुफ्ती और एक काजी होने की हैसियत से सरजमीन भोपाल के इकबाल मैदान में धरना देकर मैं बैठा था और आपके लिए लड़ाई लड़ी थी। और मैंने जब कोशिश की थी तो आपको मैं शहर सुना दूं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, राह राह आते गए कारवां बनता गया। तो जब मैं उस इकबाल मैदान में धरना देकर बैठा, उस वक्त बंदूकों के साए में मैं मौजूद था। धारा 144 लगी हुई थी। मैं 4 लोगों को लेकर नहीं, 5 लोगों को लेकर नहीं, धारा 144 को तोड़ते हुए नहीं, बल्कि संविधान के दायरे में रहते हुए 2 और 3 लोगों के ग्रुप बनाकर मैंने अपने साथियों को बिठाया था और मैं खुद उनके साथ बैठा था। और 2 दिन के बाद तंबू गाड़ दिया था और NRC के लिए जंग लड़ने के लिए हमने तंबू गाड़ कर आपकी लड़ाई मुसलसल 3 महीने तक लड़ी थी। और फिर ऊपर वाले ने, मालिक ने कोरोना जैसी बीमारी फैला दी थी, कोरोना जैसी बीमारी भेज दी थी और उस बीमारी को भेजने के नतीजे में NRC भी हमेशा के लिए दफन होकर रह गई, NRC लागू नहीं हो सकी। तो ये लड़ाई आपने मुझे ताकत बख्शेगी तो मैंने लड़ी थी, लेकिन ये बगैर पावर की लड़ाई थी। मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे पावर में आने का मौका दें। मैं जिस दिन पावर में आऊंगा तो यकीन जानिए आपके लिए जिस तरीके से बगैर पावर में रहकर लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसी तरीके से पावर में आकर मैं लड़ाई लड़ूंगा और इससे कहीं ज्यादा पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ूंगा। आपकी आवाज बनकर मैं विधानसभा में दोहराऊंगा और शेर की तरह नहीं करूंगा और ये कहूंगा कि नरेला विधानसभा की हमारे तमाम बासिंदे वासी जो मौजूद हैं वो मैं उनके लिए कभी भी नाइंसाफी नहीं करने दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।